अस्सलामुअलैकुम। बयान भी सुने मगर मुफ्ती हनीफ साहब जड़ा मांगरोल बयानात ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन यानी घंटी के बटन को भी दबा दे और हाँ, लाइक शेयर और कमेंट लाजमी कर दे। जज़ाकल्लाह। من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وعلى ذكر أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فعلت أمتي 15 خصلة ألزمها البلاء قيل وما هي يا رسول الله قال إذا كان النبل مدولا والأمانة مغرما والزكاة مغرما وأطاع الرجل زوجته وحق أمه وبر صديقه وشفى أباه وارتفعت الأصوات في المساجد وأكرم الرجل مقامة شرطه وإذا غلبت القبر أو غلبت القمر واتخذ القيان والمعاجم ولعن آخر هذه الأمة أولها فالفقير عند ذلك ريحا حمرا أو كذفا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. گرامی قدر واجب الاحترام بزرگ اور دینی بھائیوں، میں اس کو بند کر دو، کوئی ضرورت نہیں ہے پنکھے. گرامی قدر بزرگوں بھائیوں، عام طور پر سفارا کو بھی کوئی کامج نہیں ہوتا، مانگنے والوں کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا. اللہ کے مقدس گھر میں ایک عنوان بنا کر آتے ہیں، سارا مضمون تتر بتر کر دیتے ہیں. ان کو کیا معلوم ہوتا ہے کہ بیان کرنے والے کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے. کوئی بات انسان خلق الانسان عجولا، بڑا جلد باز پیدا ہوا ہے اور انسان بڑا مطلب پرست پیدا ہوا ہے. جمعہ کے مبارک دن میں انسان کیا کیا تیاریاں کر کے کون کون سے امت کے لیے ایک مفاد، امت کے لیے کام آنے والا ایک گھنٹوں کے مطالعے سے قیمتی مواد تیار ہوتا ہے اور ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں. آنن پھانن نسیم منسیہ کر دیتے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے. اس وقت پورا عالم پھر سے انتہائی خطرناک موڑ پر آ کر کے کھڑا رہ گیا ہے. امت کی سیاست، امت کی اجتماعی طاقت، امت کی تعلیم گاہیں، امت کی دعوت کے میدان، نسل انسانی کا انتہائی خطرناک نازک موڑ پر امت آ کر کے کھڑی رہ گئی. کیا ان حالات اور ان واقعات اور زمانے کی اس اتھل پاتھل کے بابت قرآن و سنت میں کوئی رہنمائی ہے؟ بس میں نے ایک آیت اور ایک طویل حدیث جو کتب حدیث میں کئی مقامات پر مذکور ہے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے. ایک بات نوٹ کرنی چاہیے، قرآن کتاب ہدایت ہے. قیامت تک آنے والی تمام تر مسائل اور تمام تر ضروریات اور تمام تر تکالیف اور پریشانیوں
इसका हल कुरान में है। दूसरी बात ये भी दिमाग में रखें, इमामुल अंबिया ताजदार मदीना हम सब के आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कयामत तक के आने वाले फितने और हालात, आसमान के नीचे जमीन के ऊपर रहने वाली मखलूकात के दरमियान में जो कुछ होने वाला है सुबह कयामत तक, उसकी पेशीन गोई पैगंबर ने हदीस की किताबों में अबवाबुल फितन में महफूज है, अपने जमाने में दे दी थी कि जमाने में ऐसा भी होगा, ऐसा भी होगा, ऐसा भी होगा। और उस वक्त क्या करना है, उस वक्त क्या लाइए या अमल तय करना है, वो भी हदीस के अंदर इलाज भी बता दिया था, फितने भी बता दिए और इन फितनों से निमटने का हल और उसका इलाज भी बता दिया गया। इस एतबार से आज का बयान बहुत ही अहमियत का हामिल है। पता चलेगा कि ये फितने होने वाले थे और हो रहे हैं और आइंदा इससे खतरनाक फितने होने हैं, और इलाज भी तजवीज कर दिया गया है कि इलाज क्या है। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, अन अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा फ़अलत उम्मती 15 खसलतन हल बिहल बला। जब मेरी उम्मत में 15 काम होने लगेंगे, जब मेरी उम्मत में 15 बुराइयां पैदा हो जाएगी। अब 15 का एक साथ पाया जाना जरूरी नहीं, और 15 पूरी की पूरी कौम में पैदा हो जाना जरूरी नहीं। 15 बुराइयों में से कोई भी बुराई जब उम्मत में पैदा हो जाएगी, और इन बलाओं में की कोई भी बला जब उम्मत में पैदा हो जाएगी, तो फिर बलाएं उतर पड़ेगी, आफतें आ जाएगी, मुसीबतें आएगी। क़ील वमा हिय या रसूल अल्लाह। साहबाए किराम कायनात के हक में बड़े ही खैरख्वाह थे, उस वक्त पूछ लिया था, हालांकि वो तो खैरुल कुरून था, उनके जमाने में तो इन बुराइयों का तसव्वुर भी नहीं था, वो तो नुज़ूल वहय का जमाना था और पैगंबर मौजूद भी थे, आसमान से वही भी आ रही थी। लेकिन इसके बावजूद सहाबा ने हमारा मसला पूछा, वमा हिय या रसूल अल्लाह, वो 15 बलाएं कौन सी है, वो 15 काम कौन से हैं जो उम्मत कर गुजरेगी या लोगों में आम हो जाएंगे तो बलाएं उतरेगी और 3 किस्म की चीजें पैदा होगी। जलजले पैदा होंगे, इंसानों की सूरतें खुदा बदलेगा, और क्या होगा, सुर्ख तेज हवाएं चलेगी और उन हवाओं से वबाएं फैलेगी, और इसको वायरस का नाम दिया जाएगा। ये दूसरा वायरस। तीसरा नाम देते हैं ओमिक्रॉन, उसका नाम दिया है। सारा निजाम दज्जाली ताकत के हाथ में आ गया है। चूंकि 22 का इलेक्शन आ रहा है, जरा सोच समझ करके बात आप सुनना, गहरी दिल से सुनना और अक्ल बसीरत से काम लेकर के कुरान और सुन्नत को चस्पा करो। क्या क्या हो रहा है, कुछ नहीं था, आनन फानन अफ्रीका से आ गया, इंडिया में पहुंच गया, लॉकडाउन की तैयारियां हो गई। तो कोई समझ में आने वाली बात है, लेकिन हदीसों के खुलासे से समझ में आएगा ये सब कुछ होना था। वो पैगंबर की बसीरत वाली आंख ने बहुत पहले बता दिया था, लेकिन हमारे पास नॉलेज नहीं था, वरना बता दिया है जरूर। रिहन हमारा, सुर्ख हवाएं और आंधियां चलती, और सुर्ख हवाओं और आंधियों के चलने पर वबाएं फैलती है, और वो वबाएं फिजाओं में जाती है और वो इंसानों की जिंदगी में दाखिल होती है। क्या है वो?
اذا فعلت امتی 15 خصلۃ حل بها البلا، بلائیں اتر پڑے گی. کون کون سی ہیں؟ اذا كانت المغنم دولا، جبکہ غنیمت کا مال خلیفۃ المسلمین امیر المومنین، کسی ٹرسٹ کا مینیجنگ ٹرسٹی، کسی ادارے کا محتمم، اسکول کا انچارج، یہ سب اس میں داخل. گھر سموہ میں چلتا ہے اس کا وڈیل، قوم کا سربراہ، رہبر، پیشوا، پنج کا مال، پنج کا ذمہ دار. ایک گھر میں 2-5 بھائی ساتھ میں ہے، ایک کے ہاتھ میں ویوہار ہے، اس کو بھی لاگو پڑتا ہے ہر ایک کو. اذا كانت المغنم دولا، غنیمت کا مال جب انسان ذاتی دولت سمجھنے لگے اور ذاتی دولت کے طور پر اس کو استعمال کرنے لگے، پنج کا مال، سماج کا مال، امت کا مال، اداروں کا مال، اور اسلامی سلطنت میں بیت المال پر جمع شدہ، اسلامی سلطنت میں بیت المال کا جمع کیا ہوا سرمایہ، بمت زکات، صدقہ، فطرہ للہ، جب انسان اس کو اپنی ذاتی دولت سمجھنے لگے، اذا كانت المغنم دولا، غنیمت کے مال کو ذاتی دولت سمجھنے لگے. پہلی چیز والامانت مغنما، اور امانت میں خیانت کرنے لگے، امانت کو غنیمت کا مال سمجھنے لگے. پہلے زمانے میں پہلا واقعہ اذا كانت المغنم دولا، ایک قبیلے نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک غلام ہدیہ کیا تھا جگہ خیبر سے واپسی کے موقع پر. خیبر ہوا تھا اور خیبر سے واپسی کے موقع پر ایک قبیلے کے ایک سردار نے اپنا ایک غلام جس کا نام کیر کرا یا کر کرا یا میدعم، کاف کے کسرے کے ساتھ یا کاف کے فتح کے ساتھ ایک نام ہے کر کرا، یا میدعم میم کے کسرے کے ساتھ، دو نام حدیث میں الگ الگ بیان کیے گئے ہیں. ابواب الفتن میں ترمذی میں روایت ہے. اللہ کے پیغمبر کو ہدیہ کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلام کو ہدیے میں قبول کیا خیبر سے واپسی کے موقع پر. یہ آقا کی خدمت کرتا تھا، اونٹ گھوڑا مہار اتار دیتا تھا، لگام لگا دیتا تھا، آقا کے پاس ہر وقت رہتا تھا، مدینہ پہنچتے خدمت کر رہا تھا. ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تھا، قیام کیا تھا. معمول کے مطابق اونٹ سے سامان اتارا، جو خدمت کرنی تھی پیغمبر کے سواری کی. اتنے میں کوئی دشمن کا تیر آیا اور اس غلام کو لگا اور غلام شہید ہو گیا. اب یہ پیغمبر کا غلام ہے، اندازہ لگاؤ، چونکہ ہدیہ ہو گیا اور آقا نے قبول کر لیا. اب دشمن کا تیر آیا اور اس کی موت ہو گئی، شہادت ہو گئی. صحابہ کرام کہنے لگے ہنیئا لہ بالجنہ، ہنیئا لہ بالجنہ، ہنیئا لہ بالجنہ. کتنا مبارک آدمی ہے، کتنا خوش قسمت ہے. پیغمبر کا خادم اور دشمن کے تیر آنے پر لگا اور شہادت نصیب ہو گئی. یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے. پیغمبر نے فرمایا خبردار، یہ جہنم میں جائے گا. کیوں؟ غنیمت کا مال تقسیم ہونے سے پہلے ایک چادر انہوں نے لے لی تھی اور ابھی وہ تقسیم نہیں ہوئی. پیغمبر نے یہاں تک فرمایا کہ جہنم کی بھڑکائی ہوئی آنکھ کی چادر اس کے اوپر میں دیکھ رہا ہوں. اذا كانت المغنم دولا، وقف کا مال اور قوم کا مال سرمایہ بہت بڑی ذمہ داری کا حامل ہے. اس میں خیانت اکبر الکبیرہ ہے. ایک چیز یہ والامانت مغنما، اور غنیمت کی چیز کو لوگ
जो है अमानत में खयानत करेंगे, वल अमानत मगनमुन, अमानत के माल में खयानत करेंगे। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी 6 चीजों की जमानत दे दे, मैं उसको जन्नत की गारंटी देता हूं। एक नमाज, एक ज़कात, एक अमानत की अदायगी, एक पेट की हिफाजत, एक शर्मगाह की हिफाजत और एक जुबान की हिफाजत। 6 चीजों की जमानत दे दे, पैगंबर ने फरमाया मैं गारंटी देता हूं ये आदमी जन्नती है। एक नमाज, एक ज़कात, इसकी अदायगी के एतबार से गारंटी दे दे, मैं उसको जन्नत की जमानत देता हूं। जुबान, पेट और शर्मगाह और अमानत, ये 6 चीजों की जमानत दे दे, पैगंबर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं उसको जन्नत की जमानत देता हूं। इसीलिए हदीस शरीफ में फरमाया, आयतुल मुनाफिकी सलास, इज़ा हद्दस कज़ब व इज़ा वअद अखलफ व इज़ा तुमिन खान व इज़ा खासम फजर। 4 बुराइयां जिसमें पाई जाए वो मुनाफिक है। जब बात करे तो झूठ बोले, जब वादा करे तो खिलाफ वर्जी करे, जब अमानत रखी जाए तो खयानत करे, और जब लड़ाई झगड़ा शुरू हो तो मां बहन की गाली बोले। 4 चीजें जिसमें हो वो मुनाफिक, और जिसमें एक खसलत पाई जाए उसमें निफाक की एक खसलत, इज़ा हद्दस कज़ब, झूठ बोलता है। इसीलिए आका ने फरमाया, अला उखबिरुकुम बि अकबरिल कबाइर अल इशराक बिल्लाह व हुकूकुल वालिदैन व शहादतुज़ ज़ूर औ क़ौल ज़ूर फमा ज़ाला युकर्रिरुहा हत्ता क़ुलना लैतहु सकत। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया, मेरे साहबा, मैं तुमको बड़े बड़े गुनाह बताऊं? क्या मैं बता न दूं बड़े बड़े गुनाह कौन से हैं? अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना, मां बाप की नाफरमानी करना, झूठ बोलना या झूठी गवाही देना। आप टेक लगाए हुए थे, आपने टेक छोड़ दी और बराबर बोलते रहे, शहादतुज़ ज़ूर औ क़ौल ज़ूर, शहादतुज़ ज़ूर औ क़ौल ज़ूर, शहादतुज़ ज़ूर औ क़ौल ज़ूर फमा क़ुलना लैतहु सकत। साहबा कहते हैं, हम कहने लगे काश अल्लाह के नबी अब चुप रह जावे, इतनी लंबी देर तक बोलते रहे। तो पहली चीज, इज़ा कानतिल मग़नम दुवलन, गनीमत के माल को जाती दौलत समझना, वल अमानत मग़नमन, और अमानत में खयानत करना। 2 चीजें हो गई, इज़ा कानतिल मग़नम दुवलन वल अमानत मग़नमन वज़्ज़कातु मग़रमन। तीसरी चीज, ज़कात को टैक्स से समझना। टैक्स कोई आदमी नहीं समझता है ज़कात को टैक्स, लेकिन तबीयत पर बोझ पड़ता है कि हर साल दागीने की ज़कात निकालने की, बड़ी हर साल रोकड़ रकम की ज़कात निकालने की, बड़ी हर साल ज़कात में बैंक में पैसा पड़ा है उसकी ज़कात निकालने की। ये वह ज़कात मग़रमन, ये मानसिकता, ये ख्याल, ये टैक्स के हुक्म में। दौलत है तो ज़कात देनी पड़ेगी, और अल्लाह मांगता कितना है? 39 हिस्से तुम रखो, 1 हिस्सा मुझे दो। यानी 40 रुपये में 1 रुपया, 100 रुपये में 80 रुपये, 97.5 तुम्हारे ने, खाली 80 मेरा। 100 में से 97.5 एक तरफ और 2.5 एक तरफ, तो 80 रुपये વધારે हैं। 1000 में से 25 रुपये एक तरफ, बाकी आदमी का 40वां हिस्सा, और वो भी साल में 1 मर्तबा। ये मानसिकता हो वह ज़कात मग़रमन। ज़कात को तावान न समझे, ज़कात को दंड न समझे, ज़कात को टैक्स न समझे। ये ज़हनीयत बहुत बुरी चीज है। खुशदिली से, बहुत ही जज्बात की पाकीज़गी के साथ मुस्तहिक के ज़कात को तलाश करके आदमी उसको अदा करे, अल्लाह उसके सरमाए में बरकत अता फरमाते हैं। वरना
अगर बददिली से ज़कात अदा की या बोझ तबीयत पर पड़ा, देखो एक नोट कर लो कोई बात दिमाग में, ये बोझ भी नहीं पड़ना चाहिए। तबीयत खुश हो, अल्लाह ने दिया है तो अल्लाह देने का कहता है ना, अगर अल्लाह ने न दिया हो तो खुदा देने का थोड़ा कहता है। इसलिए साहिब माल पर ज़कात है और माल अल्लाह की अमानत है और मालदार को टाइम फेरी दिया है और वो तो मुतसर्रिफ है, खाली हेरा फेरी करता है बस। ज़कात और मगरमन, इन तीन उन्वान से तफसील से बात हो चुकी है, इसलिए मैं मुख्तसरन जिक्र करता हूं। बस ज़कात और मगरमन, ज़कात तो लोग अदा करेंगे पर ज़कात तो लोग अदा करते हैं, लेकिन क्या रिवायत में कहा, इसको तावान समझा जावे, इसको दंड समझ ले, इसको टैक्स समझ ले और तबीयत में अदायगी पर बोझ पड़े, वो मानसिकता खत्म करनी है, खुशदिली से अदा करना है। तीसरी चीज, चौथी चीज, वह अता अर्रजुलु उम्महु व अक्का ज़ौजतहु व अक्का उम्महु, बीवी की बात मानेगा और मां की नाफरमानी करेगा। अता अर्रजुलु ज़ौजतहु व अक्का उम्महु, बीवी की इताअत करेगा, मां की नाफरमानी करेगा। ये कयामत की अलामतों में से और बलाओं के उतरने वाली चीज, वो तीन चीजें तो हो गई, और चौथी चीज यानी प्रोत्साहन बीवी को मिलेगा और मां को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। मां होने की हैसियत से मां के हुकूक है, इसलिए बुखारी शरीफ में एक रिवायत है किताबुल ईमान में, मन अबर्रुल बिर्र या रसूल अल्लाह, काल उम्मुक, क़ील सुम्मा मन, काल उम्मुक, क़ील सुम्मा मन, काल उम्मुक, क़ील सुम्मा मन, काल सुम्मा अबाका। एक सहाबी ने पूछा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे हुस्न सुलूकी का सबसे ज्यादा हकदार कौन? मैं नेक बर्ताव किसके साथ करूं और नेक बर्ताव का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? सहाबी पूछता है। आका ने फरमाया, तेरी मां। कहा मेरी मां के बाद? कहा तेरी मां। कहा मेरी मां के बाद? कहा तेरी मां। कहा मेरी मां के बाद? कहा तेरा बाप। समझते हैं, बुखारी में रिवायत है किताबुल ईमान में। सहाबी क्या पूछता है, मन अबर्रुल बिर्र या रसूल अल्लाह, मेरे हुस्न सुलूकी का खरा हकदार कौन है? तेरी मां, तेरी मां, तेरी मां। चौथे नंबर में फरमाया तेरा बाप। अब यहां सवाल पैदा होता है कि साइल ने एक सवाल दोहराया 3 मर्तबा और जवाब में पैगंबर ने 3 मर्तबा मां 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 फिर बाप कहा, हालांकि 1 मर्तबा भी काफी था। तो पैगंबर ने 3 मर्तबा मां को क्यों लौटाया और चौथी में बाप का तस्कीरा फरमाया? ऐसा क्यों किया? यही बच्चों को पढ़ाया जाता है बुखारी में। उसका जवाब आसान दिया गया। 3 तकलीफें ऐसी है जिसमें मां अकेली है और बाप पार्टनर नहीं है। यह खुसूसियत है मां की। 9 महीने पेट में उठा करके रखने वाली मां, इसमें बाप का नहीं। 4.5 महीने बाप के पेट में हमल रहता हो, 4.5 महीने मां के पेट में हमल रहता हो, ऐसा नहीं होता है। 9 महीने पूरा मां के पेट में हमल रहता है। और वो तकालीफ जो मां को पड़ती है वो तो मां ही जानती है। बच्चा करार पा जावे रहमदानी में, उससे लेकर के विलादत के दिन तक 7 महीने 9 महीने की तकलीफ एक तरफ और विलादत की तकलीफ एक तरफ, उन 9 महीने की तकालीफ को डिलीवरी की तकलीफ भुला देती है। यह हाल है मां का, इसलिए कहा उम्मुक। फिर उसके बाद विलादत की तकलीफ, एक हमल की तकलीफ, दूसरी विलादत की तकलीफ, दर्द से ये भी मां ही को सहना पड़ता है। और तीसरी चीज 2-2.5 साल दूध पिलाती है। ये 3 तकलीफों में मां अकेली है, उसमें बाप पार्टनर नहीं है। इसलिए पैगंबर फरमा रहा है उम्मुक उम्मुक उम्मुक। फिर चौथे नंबर में सुम्मा अबाका। फिर उसके बाद फरमाया फिर तेरे हुस्न सुलूकी का सबसे ज्यादा हकदार तेरा बाप है। लिहाजा आका ने फरमाया इन्नल्लाह हर्रम अलैकुम
उकूकल उम्महात, माओ की नाफरमानियों को तुम्हारे लिए हराम करार दे दिया गया। शादी से पहले और शादी के बाद, मौत के आखिरी सांस तक इंसान दादा नाना बन गया, दोतरे पोतरे हो गए। अगर माँ बाप हयात है तो माँ बाप है, इनको माँ बाप की हैसियत से रखे जाएंगे, बीवी को बीवी की हैसियत से रखा जाएगा। ऐसा नहीं कि किसी की बेटी को निकाह करके ले आए तो उसके बाद बीवी का भी कोई हक अदा नहीं करे। ये भी बहुत खतरनाक चीज है। इसलिए इस्लाम ने ज़ाब्ता बयान किया, वो बेटी है तो नेकी है, वो बीवी है तो मर्द के कमाल अखलाक की दलील है, वो माँ है तो उसके कदमों तले जन्नत है, वो बहन है तो भाई को जन्नत दिलाने की जिम्मेदार है। इस्लाम ने उसकी पोजीशन वादी की। अता अर्रजुलु ज़ौजतहु व अक्का उम्मह बर्र सदीक़हु व जफ़ा अबाहु। पांचवी चीज, बाप के साथ बदसलूकी करेगा, दोस्त की इताअत करेगा, बाप के साथ जुल्म करेगा और दोस्त के साथ अच्छा सुलूक करेगा। बर्र सदीक़हु व जफ़ा अबाहु। इसलिए माँ बाप नसीहत करते हैं तो दोस्तार अच्छा लगता है, लेकिन माँ बाप अच्छे नहीं लगते। देखो जवानों के हालात, माँ बाप अच्छे नहीं लगते। फिर फौरन ही शादी के बाद अबे आप लोग नहीं बढ़े। ये इंसानों के मिजाज हैं, उनके ख्यालात हैं। पैगंबर ने फरमाया माँ बाप हैं, जिनको जवान बनाने तक और शादी कराने तक जिनके जिस्म के हड्डों के गुदुद खुश्क हो चुके, जिनकी आंखों की रोशनाई चली गई और जिनके कानों की सुनवाई खत्म हो गई और बच्चे को जवान करके उसको शादी की। बर्र सदीक़हु व जफ़ा अबाहु। 5 चीजें हो गई। वर्तुफ़िअतिल अस्वातु फिल मसाजिद। मस्जिदों में शोर बहुत होगा। देखो सारे लड़ाई झगड़े मस्जिदों में, सारी गांव की बातें 5 वक्त में जमा होकर मस्जिदों में। थोड़ा इमाम आगे पीछे हो गया, मस्जिदों में शोर। मस्जिद में एहतिकाफ की नीयत के बगैर खाना हलाल नहीं, पीना हलाल नहीं, सोना हलाल नहीं है। एक बात नोट कर लो, मुवाफकत मुखालफत कुछ नहीं। मस्जिद अल्लाह का घर है। अल्लाह के घर में नमाज पढ़ो, तिलावत करो, जिक्र करो, दुआ करो, अल्लाह से ताल्लुक कायम करो। कुछ नहीं तो अल्लाह के मुंह में मुंह लगा करके बैठे रहो। अल्लाह का चेहरा हमारे चेहरे के साथ है। ये जितने भी लोग किबला की तरफ और रुक करके बैठे हैं, यकीन मानो अल्लाह की कसम, अल्लाह के चेहरे से चेहरा तुम्हारा मिला हुआ है। अल्लाह के रूखे अनवर से नमाजी किबला की तरफ जब रुक करता, इसीलिए देखो कोई आदमी किबले की तरफ थूकता है तो उसने अल्लाह के मुंह में थूका। ये मस्जिद में नहीं, ये मस्जिद में नहीं। मुसलमान को पैगंबर ने थूकना भी सिखाया कि रास्ता चलते हो तो बाईं तरफ एक तरफ होकर के थूको, क्योंकि एक तरफ लोग निकलेंगे और उस तरफ थूकोगे तो किसी को जो है तुम्हारा थूक पहुंचेगा, उसको तकलीफ होगी। इस्लाम ने थूकना भी सिखाया, बल्कि इस्लाम ने हगना भी सिखाया कि टॉयलेट में बैठे कैसे। वाहिद मजहब इस्लाम ऐसा है कि जिसने अंदर में पायखाना में बैठने का तरीका इस्लाम ने सिखाया है, बाकी किसी मजहब ने नहीं सिखाया। वर्तुफ़िअतिल अस्वातु फिल मसाजिद। एहतिकाफ की नीयत से अंदर ठहर सकते हैं, चाहे हम तबलीग में जाएं, चाहे हम मस्जिद में एहतिकाफ करें, चाहे मस्जिद में हम मदरसा पढ़ाएं, हर एक को लागू पड़ता है। खानका को भी, मदरसे को भी और दावत को भी। ये अल्लाह का घर है और एहतिकाफ की नीयत से इसमें ठहर सकते हैं, बगैर एहतिकाफ की नीयत से नहीं ठहर सकते। ये दरबार शहंशाह खुदाबंदी है, इसको खुशबुओं की धुनी देने का हुक्म है। इसीलिए कच्चा प्याज और लहसुन खाकर के मस्जिद में आना मकरूह है और बास सूरतों में हराम है। 135 वाला तंबाकू वाला पान दबा करके मस्जिद में दाखिल होना हराम है। बयान नहीं सुन सकते मस्जिद में बैठकर मुंह में तंबाकू दबाकर।
खेडूत छाप पड़ी की जमा करके मस्जिद में नहीं बेच सकते, दरबार शहंशाह खुदाबंदी है। यहां ज़ाब्ता वो चलेगा जो अल्लाह का है। इसीलिए फुक़हा ने लिखा है, किसी का पसीना बदबूदार है और उसमें से बदबू फैलती है, होता है इंसान, तो उसको जमात की नमाज माफ है, उसको मस्जिद में जमात के साथ नमाज पढ़ने का अधिकार नहीं है, घर में नमाज पढ़े। दरबार शहंशाह खुदाबंदी है। ये ज़ाब्ते हैं, ज़ाब्ते, ये कानून है और इन कानूनों पर अमल किया जाएगा। हमारे जमाने में मस्जिद का फर्श अगर पैर मेला है तो मस्जिद के फर्श के ऊपर पहले पैर से नहीं आ सकते हैं। इसीलिए हमारे यहां गालीचे कारगर नहीं होते। जिन ममालिक में गालीचे हैं तो वहां नाक पूछने का रूमाल अलग है, चेहरा पूछने का रूमाल अलग है। मैं 7 साल से बराबर सफर में देखता रहा हूं यूके के मुल्क में, बल्कि पैर में पानी है उसके पूछने का नेपकिन अलग है। और माशाअल्लाह हमारे यहां तो एक टुवाल जब तक उसमें से खतरनाक बदबू न फैले तब तक चेहरा पूछने का वो भी अलहदा नहीं होता, इसीलिए लोग उसको उठाकर फेंक देते हैं। वो मस्जिद के मुतवल्ली ऐसे हैं कि मस्जिद की आवक के जरिए से वो 3 टुवाल रखते हैं, एक चेहरे का टुवाल अलग, नाक का पानी पूछने का टुवाल अलग। मैंने इन आंखों से अल्लाह के घर में मैं गवाही देता हूं, मैंने कई 100 मसाजिद के अंदर ये देखा है। और वो गालीचा इसलिए बिछाते हैं कि ठंडा मुल्क है, हर एक मौजा पहनता है, और ये पैर पोंछ करके आने का गालीचे पर, और गालीचे पर लीला पैर, फिर धूल उड़े तो अंदर से कितनी बदबू निकलती है, हम और आप सज्जे में जाते हैं तो महसूस करते हैं। ये दरबार शहंशाह खुदाबंदी है, इसकी इज्जत की जाएगी, इसकी तौकीर बजा लाई जाएगी। यहां कलाम करना मना है, यहां बोला नहीं जाएगा। इसीलिए मस्जिद में अगर किसी को हवा खारिज करने की नौबत आ गई, इंसानी तबीयत है, तो बाहर चला जावे और बाहर जाकर के हवा खारिज करके आवे। मुअतकिफ अखीर के अशरे में रमजान में अपने इख्तियार से हवा निकल रही है, उसको मालूम है, तो उसको निकालने के लिए मस्जिद के हद के बाहर जाना जायज है, एतकाफ नहीं टूटेगा, लेकिन वो भी मस्जिद के अंदर हवा खारिज नहीं करेगा, क्योंकि ये दरबार शहंशाह खुदाबंदी है। वर्तुफिआतिल अस्वातु फिल मसाजिद, जब मस्जिदें बखेड़ा बन जाए, शोर, आवाज, धमाधमी, लड़ाई झगड़े, उम्मत में बला पार 15 काम जब उम्मत में होने लगेंगे तो बलाएं आएगी। वगुरिबतिल खुमुर, इसी को कहा शुरिबतिल खुमुर, बकसरत शराबें पी जाएगी। इस पर मैंने तफसील से कई बयानात दे दिए हैं। शुरिबतिल खुमुर, जब शराबें बकसरत पी जाएगी, यानी मस्जिदों में नहीं, अब दूसरी बात 6 नंबर की, जब शराबों का माहौल बहुत हो जाएगा। वत्तुकीज़तिल कय्यान वल मआज़िफ, 2 चीजें हैं। कय्यान, इसका तर्जमा नाचने और गाने वाली औरतें, कय्यान का तर्जमा होता है नाचने और गाने वाली औरतें मुंतखब की जाएगी, यानी हर एक अपनी अपनी पसंद की हीरोइन के गाने सुनेगा, अपनी भाषा में समझो। वत्तुकीज़तिल कय्यान, इसलिए इंसान को किसी का राग पसंद है, नाचने गाने वालियों ये पसंद की जाएगी। और इस नाच गान पर तो ज्यादा बोलना क्या बोलेंगे, इसलिए कि हर वक्त जेब में मोबाइल रहता है और उसमें नाच गाने से ही आगाज होता है, उसकी घंटी ही नाचने गाने से शुरू होती है। वल मआज़िफ, इसका तर्जुमा पहली सूरत में नाचने गाने वाली औरतें और दूसरी सूरत में वत्तुकीज़तिल कय्यान वल मआज़िफ, नाच और गान की कसरत हो जाएगी। यानी क्या मतलब, पहले गायन बजाते थे, अब डीजे हो जाएगा, इसका बयान हदीस में है। वल मआज़िफ, पहले ढोल बजती थी, अब उसकी जगह डीजे बजेगा। वत्तुकीज़तिल कय्यान वल मआज़िफ वलअन आखिर हादिहिल उम्मत अव्वलहा, और बाद में आने वाले अगले लोगों को
बुराई के साथ याद करेंगे, लांतान करेंगे, ये भी हो गया। इस उम्मत में सहाबा को गालियां देने वाले, इस उम्मत में ताबईन को गाली देने वाले, ताबईन को गाली देने वाले, अभी लईन शैतान वसीम रिजवी को आपने नहीं देखा? सहाबा को गालियां नहीं देखता है। वलान आखिर हादिहिल उम्मत अव्वलहा, पैगंबर ने फरमाया इदा फअलत उम्मती खम्स अशरत खसलतन हल्ल बिहल बदा, जब मेरी उम्मत में 15 चीजें पैदा हो जाए, जब उम्मत में 15 बुराइयां आम हो जाए तो अब बलाएं उतरेगी। साहबा ने पूछा वो कौन सी? पहले नंबर पे फरमाया जब गनीमत के माल को अपनी जाती दौलत समझ करके आदमी खर्च करे, अमानत के माल को गनीमत समझ कर हड़प करे, ज़कात को टैक्स से समझा जाए, बीवी की मानी जाए, मां की नाफरमानी की जाए, दोस्तों को बाप पर तरजीह दी जाए, शराबें बकसरत पी जाए, मस्जिदों में शोर बुलंद हो, वलुबिसल हरीर, और रेशमी लिबास पहना जाए, रेशम पहना जाए। औरत के लिए रेशम हलाल है, मर्द के लिए जंग के अलावा रेशम हलाल नहीं है। वलुबिसल हरीर वक्त की इज्जतिल गय्यान वल महाजिफ, नाचने गाने वालियों और नाच गान की जब कसरत हो जाए, यानी डीजे आम हो जाए, हो गया, ये सब कुछ हो गया। फिर तो कीबू इंद ज़ालिक रिहन हनारा औ खस्फन औ मस्कन औ कसफन, इसको समझना है तो इंतजार कर लेना, राह देख लेना, वाट जोई ले जो 3 चीजों की। सुर्ख आंधियां चलेगी, आसमान से पत्थरों की बारिश बरसेगी, ये पैगंबर ने फरमाया। अल्लाह इंसानों की सूरत को बंदर की सूरत बना देगा और अल्लाह इंसान की सूरत को सुअर की सूरत बना देगा। 2 आदमी एक साथ चल रहे होंगे, एक को जमीन में धंसा देगा, एक को चलने देगा, ये होने वाला है। 3 चीजें पैगंबर ने फरमाई। जब ये सब कुछ हो जाएगा और हो गया, कोई ऐसी चीज खाली नहीं जो नहीं हुई, हो गया, क्या करेंगे? 3 अजाब का इंतजार करियो। सुर्ख आंधियों में के बाद वबा आती है, एक मौसमी बारिश, समंदर में तूफान पैदा हो जाना और मौज टकरा करके कश्तियों के फाड़े कर दे। कल हुआ समंदर के अंदर एक जगह तूफान आया और कश्तियों को चीर करके अलग कर दिया हवा की मौज ने। नवा बंदर के अंदर कई कश्तियां मुसलमानों की भी थी, टुकड़े टुकड़े कर दिए, तुगयानी पैदा हुई। ये सब कुछ होता है उम्मत के इन 15 अफ़आल से। अब कोरोना वायरस, अभी लोग भूले भी नहीं थे, अब उसके बाद दूसरी मर्तबा, लेकिन इंसान ये सोचे कि ये सब कुछ तो होने ही वाला है, कोई नई चीज नहीं, होने ही वाला था ये सब कुछ, लेकिन इंसानों के हाथ में इसका कंट्रोल और उम्मत का एक महदूद तबका उस पर राज करे और इनको कुछ न हो, ये बहुत सवालिया निशान पैदा कर देता है। नाम भी वही रख लेते हैं, कानून भी जालिमाना वही पास कर देते हैं। क्या 2022 का इलेक्शन है इस वजह से? क्या उम्मत फिर कुछ बेदार हुई है या अपना बिगड़े हुए मसाइल के हल की तरफ जा रही है? तो फिर वापस गुलामों की जंजीरी के अंदर इसको जकड़ देना मकसूद है? वो तो टाइम बताएगा। क्या हकीकत है? क़ब्ल अज़ वक्त बोलना हम लोगों के लिए मुनासिब नहीं है, लेकिन टाइम बताएगा। जुल्म की राहें तेज हो चुकी, प्लानिंग रातों रात बन जाते हैं और रातों रात 100 बेड की हॉस्पिटल खड़ी हो जाती है, दवाइयां पहले से जमा कर ली जाती है जिसकी कीमत 100 रुपये की है, और जैसे ही वायरस तय हो गया तो 1000 रुपये हो जाते हैं। जो इंजेक्शन 3000 में मिलता है वो 30,000 में हो जाता है। एक सिस्टम है, एक सोची समझी साजिश है, इसके तहत सब कुछ हो रहा है। मुस्लिम सियासत
इंतहाई खतरनाक दांव पर लग चुकी है। मुसलमान तंजीमें और जमाअतें और इदारे, अब उम्मत का इत्मीनान खत्म हो चुका है। ये सारी चीजें असबाब है, मुसब्बिबुल असबाब अल्लाह की जात है। वो अल्लाह इन 15 चीजों के उम्मत में पैदा होने पर गेब से निजाम करता है। तो सुलह अल्लाह से कर लेनी चाहिए और इन खामियों, इन बुराइयों, इन बलाओं, इन वबाओं और इन मुसीबतों से इंसान अपनी जुबान से, इंसान अपने हाथ पैर से और इंसान अपनी चीजों से उसको रोकने की कोशिश करे। एक चीज भूल जाता हूं, वह उकरिमर रजुल मखाफत शर्रिही, किसी की बुराई से बचने के लिए सलाम मारा जाएगा कि इसको सलाम नहीं करेंगे तो किसी न किसी केस में फिट कर देगा। ये पैगंबर ने फरमाया है, वह उकरिमर रजुल मखाफत शर्रिही, उसकी बुराई से बचने के लिए लोग इज्जत करेंगे, वरना अंदर में तो गाली देंगे। ये पैगंबर ने फरमाया है, वह उकरिमर रजुल मखाफत शर्रिही, उसकी बुराई से बचने के लिए इज्जत। अभी की बात नहीं, अभी तो पैगंबर दुनिया से रुखसत हुए, 30 बरस गुजरे थे। यजीद की खिलाफत का दौर आया, यजीद का। अमर इब्न सईद को मदीना भेज दिया, अब्दुल्लाह इब्न हंज़ला के हाथ पर लोगों ने बैअत शुरू कर दी थी, साहबी रसूल के हाथ पर। तो यजीद ने देखा कि मदीना में मेरा पल्ला हल्का हो रहा है, अमर इब्न सईद को भेज दिया। इसने फौज कशी की मदीने पर और 3 दिन 3 रात में मदीना की 1000 कवारियां गैर शादीशुदा बच्चियों को फौज ने अल्लाहुबिल्लाह हमल से कर दिया। अमर इब्न सईद, आप इतिहास पढ़ो पता चलेगा, सब कुछ हो चुका है माजी में। मदीना की धरती है, अभी पैगंबर की आंख बंद हुए 30 साल हुए, यानी दुनिया से रहालत कर गए। अल खिलाफत मिन बादि 30 सना, 40 साल हुए मान लो, और ये हुआ। यजीद की ताकत के बलबूते पर उसने ये किया। फिर अमर इब्न सईद यहां से चला मक्का मुकर्रमा की तरफ, और मक्का मुकर्रमा जाकर फौज कशी की। तो अबू शुरैह साहबी रसूल ने अमर इब्न सईद से कहा, अल्लाह ने मक्का को हरम बनाया, पैगंबर के अलावा किसी के लिए मक्का में लड़ाई हलाल नहीं, तेरे लिए भी हलाल नहीं। मक्का में जो अमन ले लेता है, जो पनाह ले लेता है, उसको अमन मिल जाता है। लेकिन कहा, अना आलम मिनका, मैं तो तुझसे भी बड़ा जानकार हूं। अबू शुरैह ने बात खत्म कर दी, इसलिए इसके शर से बचने के लिए बात खत्म कर दी। बैतुल्लाह पर मिनजनिक कायम की, गिला से काबा को तार तार किया, और उधर से यजीद की मौत की खबर आई। अमर इब्न सईद अपने मंसूबे में नाकाम रहा। आदमी के शर से बचने के लिए उसका इकराम। हज्जाज इब्न यूसुफ सकफी ने हजरत सईद इब्न जुबैर को खड़ा किया, दुश्मनी थी, मक्के में पनाह ली थी सईद इब्न जुबैर ने, निकाला और निकाल कर कत्ल किया। और कत्ल से पहले हज्जाज इब्न यूसुफ सकफी से हजरत सईद इब्न जुबैर का मुहादसा होता है, बड़ा अजीब मुहादसा है, बातचीत होती है। कहा, अभी मैं तुझे जहन्नम रसीद कर दूंगा कत्ल करके। तो सईद इब्न जुबैर फरमाते हैं, अगर ये मालूम मुझे हो जाए कि जन्नत और जहन्नम तेरे हाथ में है और तेरी जागीर है और तेरे बाप की मिल्कियत है, तो मैं तुझे खुदा बना लेता। कैसा वो साहबी सईद इब्न जुबैर अजीब किस्म के इंसान थे। शहादत तय है, अभी शहीद हो जाना है। हज्जाज जैसा जालिम 1,20,000 इंसानों का एक अकेला तन्हा खूने नाहक का मुजरिम है, 1,20,000 इंसानों का खूनी है। उनके सामने सईद इब्न जुबैर मक्के में खड़े खड़े कहते हैं, अभी तुझे जहन्नम रसीद कर देता हूं। वो कहता है, तो सईद कहते हैं, अगर मुझे मालूम हो जाए कि जन्नत और जहन्नम तेरे बाप की लौंडी है और तेरे कब्जे की चीज है, तो मैं तुझे खुदा बना लेता। फिर कहा, अली के बाबत तू क्या कहता है? हज्जाज सईद से पूछता है,
काली के बाबत तू कहता है वो जहन्नम में है। कहा मैं जब तक मरूं नहीं और जन्नत में जाकर के या जहन्नम में जाकर के देख लूं नहीं, तब तक मैं गवाही कैसे दे सकता हूं? मैंने तो अली का हाल देखा नहीं है। जब मेरी मौत हो जाए फिर मैं जाकर के देख लूं कि जन्नत में है या जहन्नम में है, तो मुझे बता सकता हूं। हालांकि अभी शहीद होने वाले हैं। बहु करीब रजुल मखाफत सर रही है। खैर, हजरत सईद इब्न जुबैर को शहीद कर दिए। जिस दिन हजरत सईद इब्न जुबैर की शहादत हुई, आखिरत में 1,20,000 मर्तबा हज्जाज इब्न यूसुफ सकफी को शहीद के खून के बदले में 1,20,000 मर्तबा खुदा ने कत्ल किया, जिंदा किया, कत्ल किया, जिंदा किया, कत्ल किया, जिंदा किया, 1,20,000 मर्तबा। ये 15 चीजें जब उम्मत में आम होने लगे, बलाएं उतरेगी, जलजले आएंगे, पत्थरों की बारिश होगी, इंसानों की सूरतें बदल जाएगी, इंसान की सूरत खुदा बदलेगा। उस वक्त के देखने से पहले पहले अल्लाह इज्जत की मौत अता फरमाए। पैगंबर ने फरमाया, इदा कान अमराहुकुम समहाउकुम व अग्नियाहुकुम समहाउकुम, इदा कान अमराहुकुम खियारुकुम व अग्नियाहुकुम समहाउकुम व उमूरुकुम शूरा बैनकुम फज़ाहिरुल अर्दि खैरुन लकुम मिन बतनिहा व इदा कान अमराहुकुम शिरारुकुम व अग्नियाहुकुम बखलाहुकुम व उमूरुकुम इला निसाइकुम व बतनुल अर्दि खैरुन मिन ज़हरिहा। अजीब बात इरशाद फरमा दी। 3 बातें हैं। जब तुम्हारे अमीर अच्छे इंसान हो, जब तुम्हारे अमीर रहबर नेक हो, और फरमाया तुम्हारे मालदार सखी हो, और घर में, समाज में, माशरे में, मस्जिदों में, मदरसों में, हर चीज में, मुस्लिम जमातों में, तंजीमों में मशवरे से काम चलता हो। घर में भी मशवरा जरूरी है। 2 आदमी का घर हो फिर भी मशवरा जरूरी है। 5 आदमी का घर हो, घर चलाने के लिए भी मशवरा जरूरी है। वह उमूरुकुम शूरा बैनकुम, तुम्हारे मामले मशवरे से हो। बेफिक्र जमीन के ऊपर रहना तुम्हारे लिए भला है। कब्र में जाने के बजाय जमीन के ऊपर रहना तुम्हारे लिए अच्छा है। वही जाका न उमराहुकुम शरारुकुम, और जो तुम्हारे अमीर और रहबर शरीर किस्म के लोग हो जाए। साफ साफ पैगंबर ने फरमाया, शरीर बुरे बदमाश हो जाए और तुम्हारे मालदार कंजूस हो जाए और तुम्हारे मामले औरतों के हवाले हो जाए, तो बजाय इसके कि तुम धरती के ऊपर रहो, अच्छा है कि धरती के अंदर रहो। क्या मतलब, खुदकुशी कर जाने की? नहीं नहीं, अब दुनिया में जी मत लगाओ। दुनिया लुत्फ उठाने की चीज नहीं रही। जरूरत के दर्जे में इंसान उससे फायदा उठा ले, अपने आखिरत की तैयारियां करे। मैसेजेस हमसे ज्यादा आपको मालूम है, लेकिन घबराना नहीं है। आजीजाना मशवरा देते हैं, अपने दीन को मजबूत और मुस्तहकम करो, इस्लामी जमातों को, तंजीमों को मजबूत करो, सियासी, समाजी, किसी भी इनफरादी, शख्सी, इज्तिमाई इख्तिलाफात को भूल जाओ। इस्लामी इत्तेहाद को मजबूत करके इस मुल्क को अमन, आस्ती, प्यार, मोहब्बत का सबक सिखाओ। एक दूसरे की खिदमत के जज्बात पैदा करो। बीमारियां ये अल्लाह की तरफ से पैदा की हुई है और इलाज भी अल्लाह मुंतखब करता है। वरना एक आश्रम में 60 बुड्ढे थे और 60 बुड्ढों में से हर एक ने 2-2 वैक्सीन लिए थे और 60 को एक साथ कोरोना हो गया। वाह रे वाह, अजीब किस्म की सियासत खेली जा रही है, अजीब किस्म का तमाशा लगाया गया है। WHO के हाथ में इंसानों की जिंदगी भी है और इंसानों की मौत भी है। एक तबका आटे में नमक की मिकदार नचाता भी है और वो सजी भी करता है, और इंसानों की ज़हनियत भी अल-खबीसातु लिल-खबीसीन की तरह उनके साथ पेवस्त हो गई। कोई हक बोलने के लिए तैयार नहीं। ऐसा नहीं होता है, कोई बीमारी ऐसी नहीं है जिसकी दवा न हो। पैगंबर ने तो यहां तक बताया, इदा वक़अत दुबा फी इनाई अहदिकुम फमकुलू सुम्मम कुलू फइन्न फी अहदा जनाहिहि दाउन व फी उखरा दवाउन। जब मक्खी चाय पीते हो, रकाबी में चली गई, प्याले में चली गई,
खाने में सालन में चली गई, चावल में चली गई, तो इसको डिबो दो, और अगर वो पीना है तो बाद में पियो, डिबोए बगैर मत पियो। अब अकल कहती है कि देखी मक्खी थोड़ी गड़े, और शरीयत कहती है कि मक्खी को डिबो और फिर पियो। अब कोई पिए तो कोई कहेगा मक्खी चूस है। अब समझो इसको, पैगंबर ने क्या हिकमत बयान की। अल्लाह अकबर कबीरा। मक्खी के दो पर होते हैं, एक पर में बीमारी होती है और एक पर में दवा होती है। और वो जानवर ऐसा है कि बीमारी वाला पर जब किसी खाने पीने की चीज में गिरता है तो पहले बीमारी वाला पर डालता है, और अगर वो उड़कर चली गई और तुमने उसको पी लिया कि मरी तो नहीं है, चलो पी ले, इसमें क्या वांधा है, तो मत पियो। इसलिए कि बीमारी छोड़ के गई है, दवा तो नहीं दे गई है, दवा तो दे नहीं गई है। अगर पूरी चली गई होती तो उसको पी लेने में कोई वांधा नहीं था, इसलिए कि बीमारी भी डालकर गई है और दवा भी दे करके गई है। क्या अल्लाह ताला ने जानवरों के अंदर भी हिकमत और मसलहत रखी है। और कोरोना दिमागों में ऐसा घुसा है कि अब चौथा राउंड वापस ओद करके आ गया। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तदब्बुर से काम लो, किसी गाइडलाइन से पहले शरीयत की गाइडलाइन को अपनाओ, अपने घरों को 100% मसाजिद का माहौल बनाओ, अपनी मस्जिदों को 100% आबाद करो, कुरान की तिलावत का इहतिमाम करो। देखो सेपहर से पहले कुरान की तिलावत किया करो, तहज्जुद में उठो तो रात को जल्दी सो जाओ। नाचने गाने, ये मोबाइल जो है ना, नाच गाने का आला, अल्लाह हिफाजत फरमाए। उलमाए जदीद ने लिखा है, मुहद्दिसीन माहिरीन फन ने, कि अल्लाह जिनको सूअर और बंदर बनाने का अल्लाह के पैगंबर ने धमकी दी है, ये उम्मत का वो तबका है कि जो देर तक रात को गायन सुनते हैं। बात तो ऐसे भी देखे कि जब तक वो कान में लाउड लगा करके वो गाना चालू नहीं है तब तक उसको नींद नहीं आती। अगर सुबह में उठेगा, अल्लाह हिफाजत फरमावे, तो उसको सूअर बना देगा खुदा, उसको बंदर बना देगा। उलमाए मुहद्दिसीन ने इसकी शरह के अंदर लिखा है। छोड़ो मेरे बुजुर्ग, बहुत हो गया, पिछले हालात हमको बहुत बाखबर कर गए। अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाएं, चर्चे और तबसरों में न लगे। किसी चीज का चर्चा करना, उसको जिंदा करना है। हम अल्लाह से ताल्लुक पैदा करके आफियत की जिंदगी मांगे अल्लाह से सुकून की जिंदगी और सुकून की मौत। ये भोपाल का मदरसा है, गुलशन कॉलोनी में, बहुत जरूरतमंद है। अपनी हैसियत से ज़कात मिलना, सदका खैरात के जरिए से मदरसे का ताआवुन फरमाते जाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हालात, वाक़यात, हादसात, फितने से हमारी और पूरी उम्मत की हिफाजत फरमावे। और कमौसमी बारिश से जो नुकसानात होते हैं, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होकर अल्लाह से इसका इजाले के लिए और उसके दफ़ईये और उसके हल के लिए तदाबीर अल्लाह से मांगे। अल्लाह उसके इलाज के तरतीब दिल में पैदा करेगा। देखो, मुसीबत का मालिक भी अल्लाह है, अल्लाह के फैसले से उतरती है और उसका दूर करना भी उसी के हाथ में है। मांगो 2-2 रकात पढ़कर, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह उस मुसीबत को दूर करेगा, उससे बेहतर हालात में खुदावंद कुद्दूस उसको तब्दील करेगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुसूसन मुल्क हिंदुस्तान के मौजूदा इंतहाई खतरनाक सियासी पॉलिसी में मुसलमाना ने हिंदुस्तान की जान माल, इज्जत, आबरू, ईमान, अमल की भरपूर हिफाजत फरमाए और इस खतरनाक शरीर पॉलिसी से, नुकसान से अल्लाह ताला भरपूर हिफाजत फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। रहमान अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हम्दन कमा यलिकु बिजलाली अज़मतिक व अज़ीम सुल्तानिक या अहद समद अल्लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। ऐ अल्लाह, हम तमाम को कायनात में बसने वाली इंसानियत को हिदायत नसीब फरमा, गुमराही से हिफाजत फरमा, आपकी मारिफत का नूर अता फरमा, आपकी ज़ात आली से ताल्लुक़ अता फरमा। ऐ अल्लाह, बिल्कुल क़यामत से करीब का ये वक्त चल रहा है, इंसानियत अजीब कशमकश में मुब्तला है, जालिमों के हाथ में ऐसा इक़्तिदार आ चुका है, मौलाए कुद्दूस ये कभी निमटने देते ही नहीं हैं। ए हमारे परवरदिगार, यकीनन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, तुम्हारे आमाल ही तुम्हारे गवर्नर और हुक्काम है। हमारे आमाल बिगड़े, जालिमों को आपने हम पर मुसल्लत किया है। ऐ अल्लाह, बीमारी और तंदुरुस्ती भी अब उन्होंने अपने हाथ में ले ली है,
वो जब चाहें तब दुनिया को खोले, वो जब चाहें तब दुनिया को बंद कर दे। ऐ हमारे परवरदिगार, बेशक आप हय्य क़य्यूम है, आप ही हन्नान व मन्नान है, आप ही रहमान और रहीम है। पिछले जुल्म को 2 मरतबा अल्लाह हम पर वापस नाफिज करने से अपनी कमाल कुदरत से तू बचा ले। अल्लाह हम ऐसे भी हार चुके हैं, अल्लाह इस काबिल रहे ही नहीं कि जुल्म को सह सके। फिर से 500-500, 1000-1000 के दंड, फिर से घरों में जकड़ना, फिर से कारोबार बंद करना, फिर से तालीम गाहों को बंद करना। रब्बा, ऐ मेरे परवरदिगार, तेरा फैसला है। अल्लाह हम इसको कबूल करते हैं, लेकिन जालिमों के इक्तिदार से हम तेरी पनाह में आ जाते हैं। तूने हज्जाज को भी चला लिया, तूने अल्लाह यजीद को भी चला लिया, वो भी जुल्म करके चले गए, ये भी जुल्म करके चले जाएंगे। लेकिन अल्लाह हज्जाज का सा और यजीद का सा मामला अब उनके साथ हो फरमा दीजिए। ऐ मेरे परवरदिगार, अब मखलूक थक चुकी है, बहुत परेशान हो चुकी है, घरों में खाने के फापे पड़े हुए हैं, बीमारियों के इलाज के लाले पड़े हुए हैं। अल्लाह बीमारी भी यही निकालते हैं, दवा भी यही निकालते हैं। ऐ हमारे परवरदिगार, ये कैसा जुल्म का राज है। अल्लाह कोई राम राज कहता है, ये जुल्म का अजीब राज है। ऐ हमारे परवरदिगार, हमारी ही गुनाह, हमारी ही नहुसत, हमारी ही बदअमलियां, उसकी सजा हम भुगत रहे हैं। फिर भी मुसलमानों में से खुराफात की कभी नहीं हो रही है। शादियां बदल गई, मौत मय्यत बदल गए, इंसान ही पूरे बदल गए। अपने अरमान हराम तरीके से पूरे करता है, फिर होशियारी भी दिखाता है। ऐ मेरे परवरदिगार, हमारे रब, आज जुमे का मुबारक दिन है, फिर से जालिमों को उमरने न दे हमारे रब। अब इस्लाम के लाले पड़ जाएंगे, अब ईमान खतरे में पड़ जाएगा मेरा रब। मुसलमान बहुत कमजोर है। अरे परवरदिगार, हम अपनी कमजोरियों का दुख तेरे दरबार में पेश करते हैं। कमजोर ईमान है, कमजोर इस्लाम है। अल्लाह ये देर तक मुजाहदा से नहीं सकेगा, ये कहीं फिसल न जाए, ये कहीं तसलजुल में न चला जाए। अल्लाह ईमान की हिफाजत फरमा लीजिए, अकाइद की हिफाजत फरमा लीजिए, अमल की हिफाजत फरमा लीजिए। इतना तो जालिमों के हवाले न कर, वो भेड़ बकरियों की तरह हमको काट डाले, वो गाजर मूली की तरह हमें काट डाले। अल्लाह, एक बाबरी गई 6 दिसंबर को, अब मथुरा की ईदगाह का मसला इस साल की दिसंबर का ऐलान 6 का है। तेरा घर अल्लाह इराकों ने जीते जागते एक मस्जिद को मंदिर की सूरत में बदलते हुए देखा। आजिज़ी करते हैं, माफी मांग लेते हैं, तौबा कर लेते हैं मेरा रब। इन आंखों से फिर को उस मस्जिद और ईदगाह को अल्लाह मूर्ति रख करके मंदिर की सूरत में अल्लाह तब्दील न फरमा। अल्लाह तो हिफाजत कर ले। इन्होंने ऐलानात तो दे दिए हैं कि 6 दिसंबर को वहां इनके भगवान की मूर्ति बिठाएंगे। मेरे परवरदिगार, अल्लाह, हम इस कदर गए गुजरे हो गए हैं, हमारी कोई सदा ऊपर जाती ही नहीं है, हमारा कोई गर्व आंसू कबूल ही नहीं हो रहा है। अल्लाह, इस कदर जालिमों को छुट्टा दूर दे दिया गया है। अब किससे फरियाद करें, अब अपना दुख किससे दर्शाए? कौन है हमारा? हमारे लोग कौन होता है हमारा तेरे अलावा जिससे हम अपना दुख पेश कर सके? हमारा तो कोई है ही नहीं, था भी नहीं और होगा भी नहीं। आप ही मुश्किल कुशा है, आप ही हाजत रवा है, आप ही फरियाद दर्श है। हम तौबा करते हैं, हम माफी की भीख मांगते हैं। 6 दिसंबर के इंतजार नहीं करना है, आज ही हम तौबा कर लेते हैं, कसम खाते हैं। अल्लाह, तेरे अहद करते हैं तेरे दरबार में जुमे के दिन, कसम खाते हैं कोई एक नमाज भी बगैर जमात के मस्जिद के अलावा हम नहीं पढ़ेंगे। ये कस्में खाना जरूरी है मुसलमानों। हमारी मस्जिद जा रही है, अल्लाह, इन आंखों ने एक तवाबत खेज मंजर देखा, दूसरा देखने से पहले हमारी हिफाजत कर ले। हमें हमारी मस्जिदों की खबरगिरी की तौफीक दे दे,
ہمارے مدرسوں کی خبر گیری کی توفیق دے دے، ابھی قرآن کی تو تلاوت کی توفیق دے دے۔ ہم کتنے اناڑی جاہل ہیں، تیرا کلام ہونے کے باوجود اس کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جرم عظیم ہمارا ہی ہے، قصوروار ہم ہی ہیں، ہم بہت گئے گزرے ہیں، قابل تو نہیں ہے کہ تیرے دربار میں ہاتھ اٹھا سکے اے اللہ، لیکن کوئی در تو ہے نہیں اور کوئی رب بھی نہیں ہے اور کوئی گھر بھی نہیں ہے۔ اے اللہ تیرا ہی ڈر اور تیرا ہی گھر واپس دے دے، دلوں میں تیرا ڈر نکل چکا وہ واپس دے دے، ہمارے دلوں سے تیرے گھر کی گنجائش نکل چکی وہ واپس جگہ دے دے۔ جب تیرا ڈر اور تیرا گھر مسلمان کو واپس مل جائے گا انشاءاللہ العزیز، اس ملک میں اور پوری دنیا میں فتح اسلام کی ہو جائے گی۔ بس آج کے دن میں عاجزی کے ساتھ تجھ سے مانگتے ہیں، تیرا خوف اور ڈر بھی دلوں میں پیدا کر دے اور تیرے گھر سے ہمیں وابستگی نصیب فرما دے۔ مسلمان 100% مسجد کو آباد کرے گا تو کسی کافر کی زہر آلود نگاہ تیرے مقدس گھر پر نہیں پڑے گی۔ اے اللہ یہاں تیری شہنشاہیت ہے، یہاں تیرا نور اترتا ہے۔ اے اللہ کوئی مورتی رکھ کر کے وہ تیرا غضب اترے، اے اللہ یہ کتنا خطرناک چیز ہے۔ ہم معافی مانگتے ہیں، ہم توبہ کر لیتے ہیں۔ اے اللہ اس دین کی برائی سے پہلے اے اللہ ان کے خواب اے اللہ تعبیر پوری ہونے سے پہلے ختم فرما دے، اور اس مسجد کی اور کائنات کی ایک ایک مسجد کی اور سجدہ کی بھرپور حفاظت فرما لے، مساجد کی مدارس کی اب یری فرما لے۔ اے اللہ جو جو قربانیاں دی جا رہی ہے، کاٹے جا رہے ہیں، جلائے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، گرمسمان کیے جا رہے ہیں، اے اللہ ان قربانیوں کو قبول فرما کر آئندہ کے لیے امن و سلامتی کی لہریں چلا دے، اس ملک میں 100% امن و سلامتی نصیب فرما دے۔ اے اللہ رحم الراحمین مانگی ہوئی دعائیں اپنے فضل کرم پیارے آقا کے حسنات کے صدقے طفیل میں قبول فرما لے، مرحومین کی کربت کربت مغفرت فرما دے، مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما دے، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما دے۔ اے اللہ مانگی ہوئی دعائیں جمعہ کے مبارک دن کے لاج رکھ کر کسی کی آمین اور گرم آنسو کے صدقے میں قبول اور منظور فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد وصحبہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین۔